Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hari Bol. हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभु. Hare Krishna. Am I audible? Welcome to Zoom. Some features are still unknown to me. I don't know how to operate much, but as a token of gratitude, we are using Zoom. Earlier we were using Google Meet. Yes, but uh, Prabhuji has gifted us this platform. He said that you have to take classes on this. So here we are. Hare Krishna आप सभी को. Hare Krishna Anjani Mataji, Akansha Mataji. I'm not able to see the participants. Anup Prabhuji, Hare Krishna Gaurnatai Prabhuji. हरे कृष्णा हीना माता जी, पायल माता जी, आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. Give me some reactions. हरे कृष्णा. Yes. हरे बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे हरे कृष्णा कृष्णा. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा मैया दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम. So in the previous shlokas, wait a minute. Hare Krishna, sorry for the disturbance. So in the previous shloka we have seen that Krishna has guided us to fall in love with bhakti. He has introduced us many formulas and he has revealed us many insights so that we could understand that what is the knowledge of soul, what is the science behind recreation and science behind reincarnation. And in this shloka is different from all those shlokas because in this shloka, Krishna reveals that if you don't follow my instructions, if you don't reflect on what I am saying, then there will be some consequences and there must be some side effects also. So in this shloka, Krishna threatens Arjuna by his beautiful poetries कि if you will not agrees with my, or if you don't follow my path which I'm insisting you or which I'm saying to you, then there must be some consequences. Krishna cannot directly ask Arjuna to follow what I'm saying, you have to. But Krishna will, by his poetic forms and by his, what we can say, his cleverness, he just asks Arjuna, if you don't do this, na Arjuna, then there must be some consequences. Now, what are those? Krishna says, ध्यायतो विषयां पुंसां संगस्तेषु उपजायते
संगत संजायते कामा, कामा क्रोधोभिजायते. Most beautiful shlokas in Bhagavad Gita. Here Krishna is giving us warning, but it sounds so beautiful. Hmm? Here Krishna says, Dhyayato Vishayam Pumsa Sangashteshu Bachaya Sangashteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodho Bijayate. So please repeat after me. Dhyayato Vishayam Pumsa. Please repeat after me. ध्यायतो विषयान् पुंसः Yes, very nice. ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतु ध्यायतो विषयान् विषयान् पुंसाम् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषु जायते सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामा सङ्गात् सञ्जायते आत् कामः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते आसान है ये श्लोक. पहले के श्लोक थोड़े से कठिन थे. सो ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो ध्यायतो विज्ञान विषयान् पुंसः विषयान् संगास्तेषुपजायते संगस्तेषु सङ्गास्तेषु सङ्गस्तेषूपजायते जायते संगात् संजायते कामा संगात् सङ्गात् सङ्गात् सञ्जायते सञ्जायते कामः कामते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् 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 क्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो 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 विषयान् विषयान् विज्ञान पुंसः पुंसः संगस्तेषुपजायते सङ्गस्तेषु सङ्गस्तेषूपजायते संग संगात् संजायते कामा सङ्गात् सङ्गसञ्जायते सञ्जायते कामः कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् 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 क्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते धन्यवाद. इफ अगर कोई रिसाइट करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट द श्लोका. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। वेट अ मिनट, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट. यस, हरे कृष्ण दिव्य लोचन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। यस प्रभु जी, आप. ध्यायतु ध्यायतु विषयान् पुंसा। प्रभु जी आप जो क्या नाम फिर से पढ़िए एक बार प्लीज। ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतु विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते. संगस्ते उपजायते जी. संगत संगात संजायते. संजायते कामा जी, कामात् क्रोधो अभिजायते। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल. यस, हरे कृष्ण। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु वांट्स टू रिसाइट. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रिसेट करना चाहूंगा। यस श्योर प्रभु जी, आप. धायतो विषाय पुंसा संगसतसुपजायते संगत संजायते कामः कामत क्रोध विजायते। हरे कृष्ण, धन्यवाद युधिष्ठिर प्रभु जी. यस अंजनी माता जी, आप. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते Wow, so rhythmic. You must be practicing at home, Mataji. I guess you're pronouncing so rhythmic. Yes, Akansha Mataji, you. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत् सञ्जयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते Yes, Hina Mataji, आप. धन्यवाद आकांक्षा माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम ध्यायतो वंदना। विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गा सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। यदि और कोई रिसाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द, अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक, ये इंग्लिश में है। अभी हम इसको ऐसे ही रिसाइट कर लेते हैं, फिर मैं इसको हिंदी में कर लूंगा। ओके। अंजनी माता जी, आर यू देयर? कैन यू प्लीज रिसाइट द सिनोनिम्स? Okay, Prabhuji. Dhyayataha, while contemplating Vishayan, sense objects, Pumsa, of a person, Sangha, attachment, Teshu, in the sense objects, Upajayate, develops, Sangat, from attachment, Sanjayate, develops, Kama, desire, Kama, from desire, Krodha, anger, Abhijayate, becomes manifest. धन्यवाद अंजनी माता जी। हिना माता जी, ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं क्या? प्रभु जी मैं हिंदी में करूँ क्या? कोई बात नहीं मैया। ऐसा कीजिए, आकांक्षा माता जी आप पढ़ लीजिए, तो मैं फिर हिंदी में कर दूंगा इसको। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था, मैं आज इंग्लिश में कर दिया पीपीटी। यस, आकांक्षा माता जी आप रीड कर लीजिए। आकांक्षा माता जी आप हैं? शायद नहीं, शी इज नॉट इन द क्लास। ऐसा कीजिए, यस, अंजनी माता जी यू ओनली रीड, देन आई विल डू इट इन हिंदी। Contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such an attachment, lust develops, and from lust, anger arises. धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, आज का थोड़ा सा सेशन मैं इंग्लिश में कर दिया था, बट हम इसको हिंदी में कर लेंगे। कोई लैंग्वेज का बाउंड्री नहीं है, और ये तो फिर भागवत चर्चा है, तो सारे विषयों से और सारे क्या कहना चाहिए उसको, सारे भाषाओं से परे होता है। इसमें कोई भाषा का प्रतिबंध नहीं होता है। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुना को कि ध्यायतो विषयाम पुंसा। ध्यायतो विषयाम पुंसा का अर्थ है, ध्यायतो मतलब ध्याना, अपने चित्त में ध्याना। विषय, विषय मतलब समझ रहे हैं ना आप? विषय मतलब जो भोग विषय होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स, वो वस्तुओं को अपने चित्त में ध्याना। ध्यायतो विषयाम पुंसा, पुंसा का अर्थ होता है जीव, इंसान, मानव को पुंसा कहा जाता है। तो ध्यायतो विषयाम पुंसा मतलब अपने चित्त में जो व्यक्ति विषयों को ध्याता है। ठीक। संगस्तेषु उपजायते। अब संगस्तेषु उपजायते का अर्थ क्या होता है कि उस संग से तेषु उपजायते मतलब उससे उसको आसक्ति जनरेट होती है, उसको आसक्ति होती है। यदि कोई विषयों को अपने चित्त में ध्याता है तो उससे उसको आसक्ति महसूस होती है, आसक्ति बन जाती है विषयों को अपने चित्त में ध्याने से। फिर ये तीसरी लाइन में फिर भगवान बताते हैं, जब आसक्ति बन जाती है तब क्या होता है अर्जुन? उसके बाद होता है संगात संजायते कामा। संगत संजायते कामा मतलब उस अटैचमेंट से क्या होता है, एकदम तीव्र इच्छा प्रकट होने लगती है, काम, इच्छा प्रकट होने लगती है। अब काम का अर्थ हमेशा एक तरफ से नहीं होता। काम का अर्थ होता है, सपोज कि मुझे रसगुल्ला खाना है, और बहुत तीव्र इच्छा आ रही है मन में कि मुझे रसगुल्ला खाना है, राधा रास बिहारी जी का वो समोसा मेवा वाला प्रसाद खाना है, तो क्या होगा, ये काम इच्छा आ रही है मुझे। खैर वो तो प्रसाद है, तो प्रसाद के पीछे काम इच्छा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पेस्ट्रीज या मुझे वो पैटिस खाने का मन कर रहा, समोसा खाने का मन कर, तो मुझे उसके प्रति बहुत काम इच्छा आ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो संगात संजायते कामा, क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और फिर कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते, फिर भगवान कह रहे हैं कि उससे जो काम इच्छा होती है ना अर्जुन,
जो काम इच्छा अगर वो पूरी नहीं होती ना, तो उसके बाद क्या होता है, क्रोध, बहुत क्रोध जनरेट होता है, बहुत क्रोध आ जाता है। अब यहाँ पे हम हमेशा पूछते रहते हैं कि प्रभु जी मुझे गुस्सा क्यों आता है, प्रभु जी मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैं जब छोटा था, मतलब मतलब छोटा बोलने से, जब मैं भक्ति में नया नया आया था, न्यू न्यू था इस्कॉन में, तब मैं भी पूछता था कि प्रभु जी गुस्से पे कैसे कंट्रोल करिए, गुस्सा क्यों आता है इतना। हम्म? और अभी भी मेरे सामने बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, इतना गुस्सा क्यों आता है। अब देखिए, गुस्सा इसलिए आता है, हर चीज का एक साइकिल होता है ना, हर चीज के पीछे का एक स्टेज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मछली है, तो अंडे से निकली मछली, फिर वो बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी मछली हुई। तो वैसे क्या होता है, एक छोटी सी क्रिया होती है, वो क्रिया बढ़ते 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 बड़ा रूप ले लेती है। वैसे ही क्रोध होता है। क्रोध किससे पैदा हुआ, यहाँ पे हम भगवान हमको क्या कह रहे हैं, हमको यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। पूछते हो गुस्सा कैसे होता है, गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि आप अ, अपने चित्त में वस्तुओं को ध्याते हो। जब आप अपने चित्त में वस्तुओं को नहीं ध्याओगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। अब आप चित्त में अपने वस्तुओं को ध्याओगे, और ध्याने के बाद फिर क्या करेंगे हम, उसकी तीव्र इच्छा होगी, तीव्र इच्छा काम इच्छा होगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। सो इस प्रकार ये कार्य करता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंगर, दिस इज हाउ एंगर डेवलप्स। इस प्रकार गुस्सा उत्पन्न होता है। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो मन है, मन सदैव कुछ ना कुछ चिंतन करते रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। इवन सोते वक्त भी स्थिर नहीं रहता, उस वक्त तो ज्यादा चिंतन करता है। मन हमेशा चिंतन करते रहता है, कुछ ना कुछ विषयों को सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, कुछ ना कुछ उसको चबाने के लिए चाहिए। तो यदि मन को कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए, तो क्या करता है मन, फिर अलग अलग विषयों को सोचते रहता है। अरे वो मैं देखा था उसके घर पे लैम्बोर्गिनी खड़ी थी, उसके टायर कितने आके आते होंगे, मेरे को तो लगता है उसके टायर जितने के आते होंगे उतनी की तो मेरी बाइक नहीं होगी। अब मुझे भी महंगी लैम्बोर्गिनी चाहिए, काश भगवान कृपा करते राधा रास बिहारी जी, तो मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाती। एनीवेज चलो ठीक है, हरे कृष्णा ऐसे माला करते रहते। चलो ये तो भक्त की बात है, भक्त तो कम से कम अपने मन को वापस खींच के ला लेगा। लेकिन अब जो बाहर के विषय भोगी लोग हैं, उनको, उनका तो पूरा जीवन ही विषय में घूमता रहता है। दे ट्रैवल अक्रॉस देयर लाइफ थ्रू एंगर, है ना। वो पूरा का पूरा उनका जो साइकिल है, वो विषयों के पीछे ही घूमता रहता है। अब ऐसे जीव को क्या करना चाहिए, भगवान बताते हैं कि अ, इंसान को ना क्या करना चाहिए, कि सबसे पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ, जब आप उस कछुए को कभी छुओगे ना, तो क्या करता है, अपने सारे सिर हाथ पैर सबको सिकुड़ लेता है अपने कवच के अंदर। उसी प्रकार मनुष्य को जब भी इंद्रिय भोग सताए, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए एकदम, ऐसे कि आप कहीं पे भी ना फैले। यदि आप देखेंगे तो सारा का सारा जो संसार है, वो इसी चीज में घूमता रहता है, इसी चक्र में घूमता रहता है। कैसे पूछेंगे आप प्रभु जी, देखिए, सबको पता है कि आपको, आपका जो ध्यान है, आपका जो ध्यान है वो किसी ना किसी चीज पे जाके अटक जाता है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को बुलाया जाता है गुटखे का ऐड करने के लिए, है ना। और क्या कहने से अलग अलग लोगों को, यस यस श्योर प्रभु जी, नो इश्यू, अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है कि आप ये ऐड कीजिए, ये ऐड कीजिए। ऐड इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो हम देखते हैं उसको ध्याने का प्रयास करते हैं। जो भी हम देखते हैं, वॉट एवर वी सी वी ट्राई टू ओन इट, है ना। देयर देयर इज अ सटल डिजायर, कि अगर मैं कुछ भी चीज देखूंगा ना, सपोज मैंने यहाँ पे ये पेन देखी मेरे दोस्त के हाथ में, गौरनीता है प्रभु जी के हाथ में, तो मेरा मन करेगा इतनी सुंदर पेन है, इतनी अच्छी कलर की है, काश गौरनीता है प्रभु जी मेरे को दे देते हैं। सो हम जो भी कुछ देखते हैं ना, हम उसको एक्वायर करने का, अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए कहा जाता है तया परहता चेतसाम। यदि हम कोई चीज को देखते हैं ना, वेन एवर वी सी समथिंग, इट ट्राइज टू ग्रैब अवर अटेंशन।
तया परहत चेतसम, इट ट्राइज टू अबडक्ट अवर कॉन्शियसनेस। क्या करता है? हमारे चित्त, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को वो हरने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयाम पुंसा संगश तेषु पजायते। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मेंटल डिग्रेडेशन, मेंटल डिग्रेडेशन का अर्थ क्या होता है कि मानसिकता दूषित कैसे होती है। आप सभी हैं सेशन में? एक बार अपना रिएक्शन दीजिए। सो तो नहीं गए ना? प्रभु बोलेंगे प्रभु जी का हिंदी खराब है, ग्रामर मिस्टेक कर करके बोल रहे हैं। हरे कृष्णा युधिष्ठिर प्रभु जी, हीना माता जी, गौर निताय प्रभु, दिव्य लोचन प्रभु जी। ओके, सो अमृता माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा चेन ऑफ मेंटल डिग्रेडेशन। अब मेंटल डिग्रेडेशन का अर्थ क्या होता है? जब हमारी मानसिकता दूषित हो जाती है। दूषित कैसे होती है? यहाँ पे कृष्णा हमको बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं कि सबसे पहले ध्याय, आप ध्यान अगर गलत करोगे, यदि आपका ध्यान गलत है, अगर आपका कॉन्टेम्पलेशन गलत है, आप गलत चीजों को सोच रहे हो, तो ये इसी से सबसे पहले शुरुआत होती है। अगर आपका ध्यान गलत है तो आपको आसक्ति जगेगी। यदि आप सोच रहे हो कि अरे नहीं यार, वो गुपचुप वाला, मोमोज वाला ना इतने मस्त मोमोज बनाता है, उसकी चटनी तो आहा, तो हम क्या, जब हम लोग ऐसे गलत ध्यायों के ऊपर सोचेंगे, विषयों के ऊपर सोचेंगे, तो क्या होगी? आसक्ति जगेगी, और मोमोज की ठेले के प्रति आसक्ति जगेगी। फिर हम चेक करने लगेंगे, चक्कर मारने लगेंगे चौक पे कि अब खोला क्या, अब लगाया क्या ठेला वो, अरे वो मोमोज वाले भैया आए क्या, अच्छा अच्छा अभी अपना कुकर कुकर सेटअप कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट बाद वो मोमोज देने लग जाएंगे ऐसे। तो आसक्ति जगेगी। अब आसक्ति के बाद क्या जगेगा? काम जगेगा। बिकॉज संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो अब आसक्ति के बाद क्या होगा? काम इच्छा जगेगी। अरे यार, ये मोमोज वाला लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, कहाँ चला गया नेपाली, ऐसे सोचने लगेंगे। फिर अब मोमोज वाला आ गया, अब बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ मोमोज वाला आ गया, अब मोमोज खाऊंगा भैया, मैं अब मोमोज खाऊंगा। अब क्या होगा? जैसे ही वो मोमोज वाला ठेला लगाने का करेगा, उसको एक फोन आ जाएगा कि अरे भैया जल्दी आ जा करके, फिर वो सब बंद बांध करके भाग जाएगा। उतने में आप आते हैं, देखते हैं गायब, सब चीज गायब। अब तो दे भारी गुस्सा, इतना गुस्सा आएगा कि आज तो इसका मैं ठेला ही पलट देता हूँ, देखता हूँ कैसे कल लगाता है। तो सोचिए, सबसे पहले क्या हुआ कि आपको अपने मन में कुछ भी चीज का जब आप ध्यान किए, आसक्ति जगी, आसक्ति से फिर काम जगा, और काम से फिर आखिरी में क्रोध। ये एक तरह का आप देखेंगे स्टेजेस हैं, है ना। और ये आखिरी में क्रोध, क्रोध आके फिर जब क्रोध आ गया तो सब खत्म। साधु को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं जो साधु क्रोध करता है उसकी सारी विद्या नष्ट हो जाती है। हम्म? और कहा जाता है कि वॉट एवर कैचेज अवर अटेंशन इवेंचुअली कैचेज अस। जो भी हमारा ध्यान अपने तरफ आकर्षित करता है, वो हमको अपने तरफ पूरा का पूरा खींच लेता है। ठीक। तो अब हम दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है संसार में, क्यों हम विषयों के पीछे भाग जाते हैं। ठीक। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आजकल आप देखेंगे तो अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि मैं पहले कहा, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फोन यूज कर, पहले तो केवल टीवी में आते थे, अब तो फोन पर भी आते हैं। वेबसाइट यूज करेंगे उसमें भी आते हैं। हर चीज, हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट। फिर सोशल मीडिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया। अगर आपको एक बार लत लग गई तो, पहले जब मैं छोटा था ना तो पापा को देखता था, पापा ना जब भी एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया तुरंत अपना व्हाट्सएप चेक करते थे। मैं सोचता था पापा को इतना क्या व्हाट्सएप से प्यार है। फिर जब मेरे हाथ में फोन आया, मैं व्हाट्सएप यूज करने लगा, तब मेरे को पता चला कि एक एक नोटिफिकेशन क्यों देखा जाता है। सो इसी प्रकार सोशल मीडिया। फिर एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स एंड चिल, amazon प्राइम, इतने सारे मीडियम है एंटरटेनमेंट के। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, देयर आर सो मेनी वेज, कितने सारे तरीके हैं कि लोग, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपका केवल
अटेंशन, आपका ध्यान खींचने के लिए कितना आकर्षण, मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं आपको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं ना? तो अब इसको इससे हमको बचने का तरीका क्या है? भगवान यहाँ पे चार चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान चार चीजें बता रहे हैं जो कि क्या कहने से यहाँ पे कही गई है। सबसे पहले आसक्ति, ध्यान, काम और क्रोध। अब इसको हमको अपने जीवन से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान जैसा कि अर्जुन को बताते हैं कि अपने आप को भक्ति में लेना पड़ेगा, भक्ति की तरफ, कृष्णा की तरफ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, भक्ति में आने से पहले मैं हमेशा ना ऐसे वीडियोस देखता था। आई यूज टू वॉच सच वीडियोस इन विच देयर देयर मस्ट बी टिप्स ऑफ माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल की अलग अलग टिप्स रहने चाहिए, ऐसा ऐसे वीडियोस देखता था मैं। कि वो अ, सर नीचे पैर ऊपर, और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्राणायाम करते हैं कि आपका मन कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देयर इज अ सैड बिटर ट्रूथ विच इज कि कभी भी है ना, आपका मन आपके काबू में नहीं रह सकता। आपको सुनकर ना बहुत दुख भी महसूस होगा, और आपको शायद है ना बहुत अचंभित भी लगे कि आप कभी भी अपने प्रयासों से अपना मन आप केंद्रित नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नेवर कंट्रोल योर माइंड। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द सैड बिटर ट्रूथ कि आप कभी भी अपना माइंड अपने प्रयासों से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे प्रभु जी तब कर कैसे सकते हैं? तो भगवान बताते हैं कि आप कभी अपना मन नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपना मन लगा सकते हैं। केवल आप अपना मन अच्छे विषयों में, भगवान की चिंतन में लगा सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। जब हम जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, जब उनको कृष्ण का विरह महसूस होता था तब क्या कहते थे वो? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शृणुयायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। हे भगवान, आपके विरह में तो सारा संसार शून्य लगने लगता है। और आप एक बार इमेजिन कीजिए, यदि हमारे पास कोई चीज ना हो तो हम क्या करते हैं? उसके विरह में सारा संसार शून्य लगने लगता है। अब सपोज मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, अब मैं क्या करूंगा? ऐसा मेरा माइंड मुझे चीट करेगा कि मुझे सारे जगह स्पोर्ट्स कार ही दिखेगी, और उस स्पोर्ट्स कार के बिना ना मेरे को मेरा लाइफ अधूरा लगने लगेगा। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता, भक्तों को कृष्णा के बिना उनकी लाइफ अधूरी लगती है। अभी आप देखेंगे, हम में से पहले कितने डिवोटीज ऐसे होंगे जो पहले प्याज लहसुन का सेवन करते होंगे, है ना? देयर आर मेनी ऑफ अस हु यूज्ड टू कंज्यूम अनियन एंड गार्लिक इन द पास्ट। बट अभी देखिए हम क्या, हम तुलसी कंठी पहनते हैं, तुलसी की काष्ठ पहनते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं। और ये एक दिन पे तो नहीं हुआ, धीरे 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 करते कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ी, और जितने भी विषय हैं सबके सबका साथ छूट गया। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मत भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिया विजय पूर्विका सत्वम दृष्टे सुलभेति सुलभेति भवः। मतलब कि आप जैसे ही अपने सारे विषयों को त्याग के मेरा चिंतन करेंगे ना, तो आपका मन ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाएगा, आपको कुछ और प्रयास नहीं करना है। अब ये सब तो आप तो मुझसे अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने बताने का क्या कहना चाहिए, प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि भक्त लोगों को कभी भी अपना मन नियंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुबह उठेंगे, माला करेंगे, अरे दिन ही इतना व्यस्त चला जाता है, मन कहाँ पे भागेगा? सो आज का श्लोका कुछ इस प्रकार था। ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधोभिजायते। ठीक है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल का जो सेशन होगा उसके आखिरी में, सॉरी उसके पहले हम ये श्लोका को दोबारा से सुनेंगे। जो तो आप सभी को ये होमवर्क है कि आपको ये श्लोका अच्छे से याद कर कर आना है। जो लोग ग्रुप में नहीं है, उत्तम श्लोका ग्रुप में, वो अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए, तो गौर निताय प्रभु जी, अमृता माता जी उनको ऐड कर देंगे।
और कल के क्लास में आपको ये श्लोका याद कर कर आना, ये पीपीटी शेयर हो जाएगी ग्रुप में, ठीक है ना? रिएक्शंस दीजिए, या आप सभी बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके कि यस प्रभु जी। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? हरे हरे कृष्णा जोगिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी के हरे माता जी कह कृष्ण रहे थे मैं जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सभी तो मेरे से सीनियर डिवोटी है, मैं प्रश्न तो ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि किसी का कुछ रियलाइजेशन या कुछ आप जो ऐड करना चाहते हो प्लीज कहिए, फिर हम नरसिंह आरती गा के सेशन को एंड करेंगे। ओके, सो अंजनी माता जी, आज की क्लास आपको समझ आई ना? माता जी साउथ इंडिया से, उनको हिंदी नहीं आती। यस प्रभु जी। हाँ, ओके। सो अब नरसिंह आरती करेंगे, फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपो वक्षः शीलाटङ्कानखालाये, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिरे नरसिंहा, हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कामल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु, तनुभृङ्गां केशवदेता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहादेव, 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 जय नरसिंहादेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह नरसिंह देव भगवान जी की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया लेफ्ट नहीं करेंगे, एक प्रश्न पूछना था मुझे।